अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता तक की बात अपने प्रस्ताव में रखी थी पंडित नेहरू ने। 2. Wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic, and political, equality of status, opportunity, and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association, and action. एक एक करके 8 नुक्ते सामने रखे थे उन्होंने और हमारे संविधान का पूरा नक्शा कुछ ही शब्दों में खींच दिया था। मगर उन्हें भी आज संविधान सभा में कुछ लोगों की कमी बहुत खल रही थी। आज इस असेंबली में हमें बहुत से लोगों की कमी खल रही है। हमें अच्छा लगता अगर और भी सभी इलाकों, सूबों और राज्यों के नुमाइंदे हमारे बीच होते। एक और शख्स आज यहां मौजूद नहीं है, मगर वो हम सब के दिलो दिमाग से दूर नहीं है। हमारे महान नेता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनकी लगन और मेहनत के बदौलत ही आज ये असेंबली मुमकिन हो पाई है। बापू यहां मौजूद नहीं है क्योंकि अपने आदर्शों को पूरा करने के लिए वो हिंदुस्तान के किसी कोने में चुपचाप काम करने में जुटे होंगे। पर मुझे इस बात का जरा भी शक नहीं कि उनकी रूह हमारे बीच यहां मौजूद है और हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। I also think of the various constituent assemblies that have gone before us, when the fathers of the great American nation met and fashioned out a constitution that has stood the test of time for more than a century and a half. My mind goes back to that constituent assembly which met in the lovely city of Paris, and how the king and other authorities came in its way, and it still continued. Even the room for that meeting was denied, and the Constituent Assembly betook themselves to an open tennis court and did not disperse till they had finished the task they had undertaken. We too, whether we meet in this chamber or in the fields or the marketplace, will go on meeting and continue our work till we have finished it. 13 दिसंबर को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के साथ पंडित नेहरू ने हमारे संविधान की नींव रखी थी और 14 दिसंबर को जिन्ना साहब ने संविधान सभा की पूरी बुनियाद पर ही सवालिया निशान लगा दिया। Is complete independence the goal of the Muslim League? What do you think we are fighting for? Our goal is complete independence, certainly. The complete independence of Pakistan. But Mr. Jinnah, if the Congress accepts the proposals laid down by the British government, would the Muslim League be then ready to take part in Constituent Assembly? It's all very well to talk in this loose way about Constituent Assembly. The reality is that the Congress with 292 supporters, there might be a few less, has a brute majority, where the Muslim number is only 79. Is that what people understand when they talk of democracy? The truth is that between the Hindus and Muslims in India, there is no such thing as democracy. Does that mean that the Muslim minority wants a veto on the progress of the majority? What majority do you mean? If you mean the Hindus, then we wish them Godspeed. Go ahead and establish your Hindustan. Frame your constitution for the Hindus, but then leave us alone, and we shall frame a constitution for Pakistan. ये तो बस आगाज था। आगे और तमाम अड़चनें आनी बाकी थीं। अब देखना है इन चुनौतियों का सामना कैसे किया हमारा संविधान बनाने वालों ने। दिसंबर 1946 में संविधान बनाने का काम शुरू होते ही 600 साल पुरानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स से सिर्फ 6 दिन पुरानी भारत की संविधान सभा पर जोरदार आक्रमण किया इंडिया को अपना गुलाम समझने वाले सर विंस्टन चर्चिल ने। चर्चिल साहब की हिमाकत देखी आपने मौलाना।
हाउस ऑफ कॉमन्स में जनाब फरमाते हैं कि any attempt by the Congress party to establish Hindu rule on the basis of majority will be fatal to any conception of the unity of India. This unity was a superficial appearance imposed there by the long generations of British rule. And it would pass away once the impartial guidance from the outside is withdrawn. बकवास। इलेक्शन हारने से चर्चिल साहब का दिमाग फिर गया। Quaid-e-Azam, listen to this. Churchill says even more in his speech. The British government owed special protection to the Muslims, numbering 90 million. But today they've been outwitted and outmaneuvered. This is exactly what I have been saying all along. Therefore, this meeting in Delhi is not the proposed Constituent Assembly, and it represents only one major community in India. Right. Churchill knows how to call a spade a spade. जनाब आगे फरमाते हैं, इरशाद। if a bride or a bridegroom fails to turn up at the church, the result is what is called a unilateral wedding. The absolute essence is that both parties should be there. और वो खुद क्या हैं? दुल्हन के बाप? कमाल है, कमाल है। मुस्लिम लीग की गैर मौजूदगी सबको खल रही थी और जब जिन्ना साहब ने कहा कि उनकी वर्किंग कमेटी 20 जनवरी को तय करेगी कि कब वो संविधान सभा में आएंगे, तो डॉक्टर M.R. जयकर ने प्रस्ताव रखा कि जब तक रजवाड़ों या कम से कम मुस्लिम लीग के लोग संविधान सभा में नहीं आते, तब तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस और वोट को मुलतवी कर देना चाहिए। पर हर किसी को ये बात गवारा नहीं थी। If this resolution is postponed, what guarantee is there that the Muslim League will come and attend the sessions? My charge is that the Muslim League has been encouraged by the attitude of the British to imagine that if it does not come, it may be able to veto the final decision of the Constitutional Assembly. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ठीक बाद पहली बार संविधान सभा में बोलने खड़े हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Today, we are divided politically, socially, and economically. We are a group of warring camps. And let me confess that I am probably one of the leaders of such a camp. But, sir, I'm quite convinced that given time and circumstances, nothing in the world will prevent this country from becoming one. However, I find no reference to the idea of grouping in the objectives resolution. Personally, I do not like the idea of grouping. But I always thought the Congress party had agreed that if the provinces which are placed under different groups consent to form a union or sub-federation, it would have no objection. Then why is there no mention of this? An omission that is bound to prevent the Muslim League from entering this assembly. I'm not asking you to consider whether you have the right to pass this resolution straight away or not. It may be that you have the right to do so. The question I'm asking is this: is it prudent for you to do so? जिन्ना साहब के इंतजार में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का काम 21 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया, पर चर्चिल साहब की बेबुनियाद बातों का फौरन जवाब देना जरूरी था और ये काम किया खुद सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में अभी पिछले दिसंबर में मिस्टर चर्चिल ने फरमाया कि हमारी ये संविधान सभा भारत के केवल एक धर्म के लोगों की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये असेंबली सिर्फ हिंदुओं की एक सभा है।
और साथ में उन्होंने ये सवाल भी उठा दिया कि whether this meeting of caste Hindus in Delhi can be regarded by the government as the Constituent Assembly at all. इस किस्म के बयान न सिर्फ तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हैं, बल्कि गलत और भ्रामक बातें भी फैलाते हैं। और इसी वजह से मैं ये जरूरी समझता हूं कि आज हम यहां सच को सामने रखें। और सच ये है कि इस प्रिलिमिनरी सेशन में 296 मेंबर्स में से 210 ने इस संविधान सभा में हिस्सा लिया और इन 210 मेंबरान में से 155 हिंदू, 30 शेड्यूल्ड कास्ट, 5 सिख, 6 इंडियन क्रिश्चियंस, 5 बैकवर्ड ट्राइब्स के नुमाइंदे, 3 एंग्लो इंडियंस, 3 पारसी और 80 मुसलमान भी शामिल रहे हैं। सबसे बड़ी कमी मुस्लिम लीग के सदस्यों की रही है और हम सबको इस बात का बेहद अफसोस है। लेकिन जो संख्याएं मैंने गिनाई हैं उनसे यह साफ जाहिर हो जाता है कि इस असेंबली को सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी का नुमाइंदा बताना या सिर्फ हिंदुओं की सभा कहना तथ्यों के साथ सरासर खिलवाड़ है। 20 जनवरी को जिन्ना साहब ने बिना कोई वजह बताए मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी की मीटिंग फिर टाल दी। लिहाजा डॉक्टर जयकर ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को स्थगित करने का अपना अमेंडमेंट वापस ले लिया और 22 जनवरी को संविधान सभा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कर दिया गया। जवाब में कायदे आजम जिन्ना ने संविधान सभा में आना तो दूर, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही गैर कानूनी और नाजायज करार दे डाला। The working committee of the Muslim League is emphatically of the opinion that elections to and the summoning of the Constituent Assembly, in spite of the strong protest and emphatic objection of Muslim League, were ab initio void, invalid, and illegal, as the major parties had not accepted this statement. And the continuation of the Constituent Assembly and its proceedings and its decisions are ultra-virus, invalid, illegal, and therefore it should be dissolved forthwith. उधर चेंबर ऑफ प्रिंसेस यानी राजे रजवाड़े भी पंडित नेहरू के प्रस्ताव से बहुत घबराए हुए थे। नवाब साहब भोपाल ने राजघरानों की हड़बड़ाहट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर की। हमें मजबूरन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी है क्योंकि पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास करवाया है वो कैबिनेट मिशन में तय की गई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन को लाने और पास करवाने के हम पूरी तरह से खिलाफ हैं। सर, जैसा कि पंडित नेहरू जी ने कहा है कि उनको जाती तौर पर ना तो राजशाही पसंद है, ना राजा और ना ही नवाब, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पंडित नेहरू को अपनी जाती राय रखने की और उसका इजहार करने की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन हां, अगर उन्होंने अपना बनाया हुआ कोई कानून हम पे ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की तो हिंदुस्तान के 550 शाही घरानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। यहां देखने की बात यह है कि मेजॉरिटी पार्टी के अभी से ये तेवर हैं, तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारा क्या होगा ये तो खुदा ही जाने। उसके लिए हम अपने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का रेजोल्यूशन आपके सामने रखेंगे। The Princess Chamber wants to make it clear in unequivocal terms
that there could be no compromise on the monarchical form of government in the Indian state. Some checks and breaks have to be provided against the majority party running amok in the future governance of India. And the chamber demands that there are guarantees and assurances given that territories of the princely states are not interfered with once the British have left. And we will be free to follow our customs and rules as far as the succession is concerned. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पास किया हुआ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बड़े ही खतरनाक इम्कानातों से लबरेज है और इसीलिए हमने साफ साफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का रेजोल्यूशन सबके सामने रखा है। सन 47 की शुरुआत में यहाँ हिंदुस्तान में लोग संविधान सभा से तमाम उम्मीदें लगा रहे थे और तरह तरह की मांगें उठा रहे थे, लेकिन वहाँ इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री एटली ने एक महत्वपूर्ण पर नाटकीय घोषणा कर डाली। ये ऑल इंडिया रेडियो है। आज प्राइम मिनिस्टर एटली ने एक बयान में फरमाया कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट को बड़े अफसोस से इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों में अब भी शदीद इख्तिलाफ की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रही है। इस नाजुक मौके पे गैर यकीनी हालात के होते हुए मुल्क को बड़ा खतरा है। चुनांचे हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ये वाजे करना चाहती है कि एक ठोस कदम उठाने का उनका इरादा अब टल नहीं सकता और वो हिंदुस्तान की बागडोर हिंदुस्तानी हाथों में सौंपने की तारीख जून 1948 के आगे नहीं बढ़ा सकती और ब्रिटिश इंडिया की बागडोर हिंदुस्तानी हाथों में सौंपने की जिम्मेदारी होगी नए वाइसरॉय एडमिरल वाइकाउंट माउंटबेटन की, ताकि हिंदुस्तान खुद मुख्तारी से आगे चलकर एक खुशहाल और खुशबाश मुल्क बन पाए। असली इम्तिहान तो अब आएगा जवाहर, जब हमें अपनी सरकार बनानी और चलानी पड़ेगी। हम तैयार हैं बापू। सरदार के साथ मिलकर मैंने एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। बस हमने अपनी लिस्ट में ऐसे किसी को नहीं रखा है जो हमारी सोच का हिमायती न हो और जो अब तक अंग्रेजों का चाटुकार रहा हो। सरदार, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया हो, पर अंग्रेजों की सेवा करके वो हमारे दुश्मन तो नहीं बन जाते हैं ना। वो भी आखिरकार हिंदुस्तानी ही है और अगर अब उन्हें मौका मिलेगा तो वो हिंदुस्तान के लिए भी अपना हुनर दिखाएंगे। ठीक बात है बापू। कैबिनेट के 14 लोग छांटते वक्त हमें और किसी बात को नहीं, सिर्फ हुनर को तरजीह देनी चाहिए। एक और बात का ख्याल रखना होगा आपको। 14 में से 7 लोग ऐसे हों जो कांग्रेस के ना हो और ये भी कि आपके मंत्रिमंडल में औरतें हों, मुसलमान हों, पारसी हों, सिख हों और हरिजन हों। बापू, जगजीवन राम जी का भी नाम हमारे फहरिस्त में है। और अंबेडकर, वो मेरा पुराना विरोधी है, पर यह बात भी सच है कि संविधान और कानून के बारे में जितना वो जानता है शायद कोई जानता हो पूरे देश में। और अगर आपने अंबेडकर के ज्ञान और अनुभव का फायदा नहीं उठाया तो नुकसान उसका नहीं, हिंदुस्तान का होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने आते ही सारे नेताओं से मुलाकात की। सबसे पहले पंडित नेहरू से, जिन्हें वो पहले से जानते थे। दोनों इस बात पर एक मत थे कि सबसे बड़ी चुनौती होगी जिन्ना साहब की जिद, और हुआ भी यही।
जब जिन्ना साहब माउंटबैटन से मिलने पहुंचे। वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि उन्हें पूर्व में बंगाल और असम और पश्चिम में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अपने पाकिस्तान के लिए चाहिए, और साथ में चाहिए एक गलियारा जो दिल्ली, रामपुर, लखनऊ और पटना से होते हुए कलकत्ता जाएगा। पर जब माउंटबैटन ने कहा कि कांग्रेस ऐसा गलियारा कतई नहीं बनने देगी और पूरे बंगाल और पंजाब का तो सवाल ही नहीं उठता, तो जिन्ना साहब बोले, बेटर अ मॉथ ईटन पाकिस्तान दैन नो पाकिस्तान एट ऑल। पर बापू अभी भी अपने काठियावाड़ी भाई को समझाने में लगे हुए थे। May I have some salt, please? Sure. मेरे भाई जिन्ना, I will plead with you 70 times 7 if the need be. But I can never agree to your idea of dividing India. In that case, let's agree to disagree on the question of partition. But I'm entirely with you on the question of signing an appeal to both Hindus and Muslims to keep peace. If you want, you can have a look at the draft typed by my assistant. I need not read anything that you ask me to sign. पहले आप। मैं लॉर्ड माउंटबैटन से कहने जा रहा हूं कि अगर जरूरत पड़े तो वो अंतरिम सरकार को बर्खास्त करके जिन्ना को दावत दें और कहें कि वो अपने मन की सरकार कायम कर लें। बस पाकिस्तान बनाने की मांग छोड़ दें। बापू, आप अपनों की बलि चढ़ाकर एक ऐसे आदमी की हिमायत कर रहे हैं जिसने सारी जिंदगी आपका विरोध किया है। अगर मेरे अपनों की बलि चढ़ाकर हिंदुस्तान बच जाता है तो सौदा महंगा नहीं है सरदार। बापू, ये आपका ज्यादा ख्याल हो सकता है। आपको लगता है कि सेंट्रल असेंबली इस बात पर आपका साथ देगी? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि कांग्रेस सदन में अपने बहुमत का इस्तेमाल जिन्ना की सरकार को रोकने के लिए नहीं करेगी। बापू, मैं हमेशा आपकी बड़ी इज्जत करते आया हूं, लेकिन अब आपकी बात मुझे अजीब लग रही है। फर्ज कीजिए हमने जबान दे भी दी, तो आपको क्या लगता है कि जिन्ना साहब एक पल भी कांग्रेस का यकीन करेंगे? और फिर सदन में इतने सारे लोगों को समझाना क्या आसान होगा कि आप सारे के सारे चुपचाप हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहो कि कैसे जिन्ना जैसे तानाशाह की मनमर्जी चलती है? ना ना ना, ऐसे पागलपन के स्वांग में हिस्सा लेने के बजाय मैं सभा से इस्तीफा देना पसंद करता हूँ। बापू, लॉर्ड माउंटबैटन खुद जानते हैं कि इन हालात में मुस्लिम लीग को सरकार बनाने देना बिल्कुल फजूल की बात होगी। शायद आप लोग बेहतर समझते हैं। वैसे भी मेरे जैसे बूढ़े का यहाँ क्या काम? मुझे तो बिहार और बंगाल में होना चाहिए, जहां दंगे फिर भड़क रहे हैं। यहां तो आप लोग हैं ही दिल्ली संभालने के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक समझौते तक लाना शेर बकरी को एक साथ चराने जैसा था, पर सब तरफ निराशा नहीं थी।
अप्रैल के अंत में जब संविधान सभा दूसरी बार मिली तो कई रजवाड़ों के नुमाइंदे उसमें शामिल हो चुके थे। बरोडा, कोचिन, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, रीवा और पटियाला जैसे महत्वपूर्ण राजघरानों के प्रतिनिधि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। The Constituent Assembly welcomes the representatives of the princely states and expresses the hope that others who have not chosen their representatives will take immediate steps to do so. विडंबना ये थी कि जिस वक्त भारत के नागरिकों को ये डर था कि वो भारत के ही नागरिक रहेंगे या बंटवारे के बाद एक नए मुल्क के बाशिंदे बन जाएंगे, उस वक्त संविधान सभा में भी नागरिकता पर ही बात हो रही थी। Now I come to clause 3. Every person born or naturalized in the Union according to law shall be a citizen of the Union. सर, क्या संघ में पैदा होने वाला हर बाशिंदा, भले वो जर्मन हो या जापानी, इस देश का नागरिक बन जाएगा और भारतीय नागरिक के सारे हक भी पा जाएगा? मगर इन शब्दों पर भी तो गौर कीजिए महोदय। सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन, यानी विदेशी राजदूतों और डिप्लोमेट्स के यहां पैदा होने वाले बच्चे हमारे नागरिक नहीं बन जाएंगे। पर मान लीजिए कोई जापानी महिला हिंदुस्तान से गुजर रही है और उसको बच्चा हो जाता है, तो क्या होगा? The American Supreme Court says that a casual visitor will not fall in this clause. And what happens to a man who is not passing through but stays for trade or some other purposes? सर, मेरा प्रस्ताव है कि हम इस क्लोज को फिलहाल पोस्टपोन कर दें और कल इस पर चर्चा करें। For the time being, let us accept the general principle. We need not manufacture a law of nationality overnight before 11 o'clock tomorrow morning. I will request lawyers and jurists who are members of this House to pay attention to this clause, and a committee of 3 lawyers is formed. Sir, I suggest that in addition to 3 lawyers, one man of common sense should also be added. And I do not exclude lawyers from the category of people of common sense. हंसी के ठहाके तो लग रहे थे, मगर स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही थी। जिन्ना साहब अपनी जिद पूरी करके ही दम लेंगे, ये उन्होंने ठान लिया था।